Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to discuss about the population problem and also to discuss some solution related to the population problem. Students, overpopulation is an undesirable condition where the number of the existing human population exceeds the actual carrying capacity of the earth, right? ओवर पॉपुलेशन बेटा हमेशा से ही एक अनडिजायरेबल कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन जो हैं वो एक्सीड हो जाते हैं। जो नंबरिंग है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज हो जाता है और फिर जो एक्चुअल कैरिंग पावर है अर्थ की, उस पॉपुलेशन को संभालने की जो शक्ति है अर्थ की, वो लगभग खत्म हो जाती है। So the problem of population is becoming more serious in the world, and it's become serious problem every day. Day by day, the population is increasing, and even all developed countries are beginning to get worried about this. Population इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है बेटा कि एक ये समस्या हो गया है और लगभग हर नेशन अब चिंता व्यक्त करने लगा है इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देख करके। स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ occurs due to some responsible reasons. Let us consider some of them. Due to the overpopulation, we will going to suffer by serious issues. Like in present times, the population of the world increasing rapidly, and if the world population remains growing at this rate, then it will become 1400 crore by 2040, and it is very serious. It means we doubled our population in coming some years. We are in 2020, and after only 20 years we are going to having the double population. That is a very serious issue, and if the population increasing at this rate, then we are having very limited resources. The quantity of natural resources that feed the population is very limited, we know that, and if the population is increasing day by day, the resources start decreasing. It reduced in comparison to population requirement. So this is a kind of issue, this is a kind of problem, right? अब सोचिए अगर इसी एक्सट्रीमली हाई रेट से, इसी रैपिड ग्रोथ के साथ पॉपुलेशन बढ़ता गया, आज हम 2020 में हैं और 2040 आते आते एस्टिमेट्स कहती हैं कि अगर इसी रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो वी आर हैविंग डबल पॉपुलेशन, वी आर गेटिंग डबल पॉपुलेशन विद इन 20 ईयर्स। और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ेगा, जितना पॉपुलेशन उतना रिसोर्स का कंजप्शन, राइट? Concentrated distribution. Student, distribution of population on earth is not uniform. We discussed due to some factors the distribution of population is not uniform. Population concentrated at a small part of land. अगर आज हम देखें तो कुछ फिजिकल, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम लैंड एरिया पर है और बहुत बड़ा लैंड एरिया विदाउट पॉपुलेशन है। एंड डेटा सेज दैट 90% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव्स एट 1/3 पार्ट ऑफ लैंड। एक तिहाई हिस्से पे जमीन के, अर्थ के 90% पॉपुलेशन जो है रह रहा है। एंड द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे due to the growth in population, and due to increase in population the standard of living
in China, India, Korea, Pakistan, Indonesia is very low. These are some of the countries who are having very high population cover. China is the highest populated country in the world. On second position, India standing. So these countries are suffering. The standard of living is very low in these countries because due to the growing population, the resources are getting decreases, right? Now, discouragement in uninhabited land. The area of uninhabited land is nearly 70% part of total area of Earth, and it is not hoped for humans to be inhabited on such land in future. आज अगर हम देखें तो हमारे अर्थ का 70% जो टोटल एरिया है वो अनइनहेबिटेड है, जहाँ कोई ह्यूमन नहीं रहता। लेकिन हमारी कोई आशा भी नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ होप दैट इन फ्यूचर ह्यूमन स्टार्ट लिविंग दीज प्लेसेस, बिकॉज right now these places are uninhabited due to several reasons, and these several reasons are same for today, for yesterday, for today and for tomorrow also. इन प्रॉब्लम्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इन फैक्टर्स पर कोई असर नहीं होगा। आज 70% जो लैंड एरिया है जो वेकेंट है, विदाउट ह्यूमन है, वो कारणों से है। डेजर्ट है, हायर एल्टीट्यूड पर है, या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी हाई है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस, और ये रीजंस हमेशा बने रहेंगे, राइट? Natural and human restrictions. Famine generally spread in such areas where physical resources do not bear the burden of population. अब जानते हैं बच्चों कि famine आमतौर पर उन्हीं जगह पर ज़्यादा फैलता है जहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज उस famine को bear नहीं कर सकते। पॉपुलेशन वहाँ की इस बर्डन को झेल नहीं सकती। Due to poverty, standard of living goes so much down, and that death rate increases due to illness, and epidemic and population begins to decrease. पोवर्टी की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, डेथ रेट इंक्रीज हो रही है, इलनेस, बीमारियां, एपिडेमिक, महामारियां, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। So these are some of the issues related to the excessive population. Do we have any kind of solution of these problems? Yes, of course we have. Now let me discuss some of the solutions to control the population, to control the problems of the population, right? Firstly, if we increase economic output by optimizing geographical resources, then surely the population, some impact goes on population, increasing population. How? स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इकोनॉमिक आउटपुट को पूरे एंटायर जो जोग्राफिकल रिसोर्स है उनका फुलफिल ऑप्टिमाइजिंग यूज करके अगर इकोनॉमिक आउटपुट ले लेते हैं, इकोनॉमिकली जो आउटपुट आता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो उसका असर कैसा होगा? ह्यूमन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर उसका असर पड़ेगा। ह्यूमन की इकोनॉमिकल वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, और वो फिर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में। सेकेंड, कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, माइनिंग, प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैकेनाइजेशन, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इज एसेंशियल। आज ज़रूरी है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि आज ज़रूरी है कि हम डेवलप होना चाहते हैं, लेकिन उसी डेवलपमेंट ने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को एक्सेस कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ज़रूरी है कि वो सभी चीज़ें जिनकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उन पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाया जाए। कंट्रोल लगाया जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, कंट्रोल लगाया जाए ट्रांसपोर्टेशन पे,
जो भी मीन्स है कम्युनिकेशन के, उन पर माइनिंग प्रोग्रेस, इंडस्ट्रीज, इन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल जरूरी है. देन इफ वी स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, दिस ऑल्सो हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉपुलेशन. अगर हम लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज करें, उनको एजुकेट करें, उनको प्रॉब्लम से अवेयर कराएं कि बढ़ती हुई प्रॉब्लम जो है समस्या है, इसकी वजह से गरीबी है, इसकी वजह से इलिटरेसी है, इसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज हैं और लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना डाउन है. तो श्योरली आफ्टर गेटिंग द अवेयरनेस, पीपल स्टार्ट यूजिंग सम मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, राइट? If you renew the agriculture, then the problem of pollution is also having some solution. किस तरीके से? अगर हम एग्रीकल्चरली अपने देश को कैपेबल बना लें, सेल्फ सफिशिएंट बना लें, तो ज़रूर बढ़ती हुई पॉपुलेशन का भी अच्छे से भरण पोषण कर पाएंगे, राइट? पॉपुलेशन कंट्रोल करना वैसे तो ह्यूमन के हाथ में है, लेकिन अब जितनी फैमिली है उतनी पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उस पॉपुलेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना, राइट? और वो कैसे मेंटेन होगा? जब हम रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे. ओशियंस आर ऑल्सो a good source of resources, and for better survival, if we use these oceanic resources, then surely we control the problems. Migration of population to uninhabited area, this is also a kind of solution. If we encourage the population regarding to shift in those places where the places earlier uninhabited, then this is also a kind of solution. अभी तक जो uninhabited areas हैं, अगर हम उनको भी ऑक्यूपाई करने के लिए लोगों को एनकरेज करें, उनको माइग्रेशन के लिए अग्री करवा लें, तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है. इसकी वजह से किसी एक ही जगह पर पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं होगा, बल्कि वो प्रेशर जो है वो थोड़ा बट जाएगा, राइट? लास्ट, लेट मैरिज, फैमिली प्लानिंग एंड बर्थ कंट्रोल. These are also some of the solution for increasing population. अगर हम शादी की उम्र ही बढ़ा दें, अभी जो एज है 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज, वो इंक्रीज कर दें हम, तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है. अगर हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सीरियसली अडॉप्ट करें, जैसे चाइना क्या कर रहा है, हर फैमिली में, हमारे इंडिया में हम दो हमारे दो कॉन्सेप्ट, दे प्रेफर हम दो हमारा एक. This is also a kind of solution, right? Birth control. If women can aware by the problem regarding the population increase, and they start adopting the measures regarding the birth control, this is also a kind of solution. बर्थ कंट्रोल का अगर उपाय अपनाया जाए, जो भी साइंटिफिक मेथड है उसको यूज किया जाए, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोल्यूशन. होप यू अंडरस्टैंड दिस entire concept well. So let us move to the last topic of this chapter, and the name of the topic is demographic transition theory. Students, demographic transition theory means, students, now the last topic of this chapter, demographic transition theory.
Students, this theory is used to describe the population of an area and estimation of future population. ये जो थ्योरी है, ट्रांजिशन मतलब चेंजेस, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में आने वाले चेंजेस पर रिलेटेड थी। ये थ्योरी यूज की जाती है पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, और डिस्क्राइब करने के लिए का कारण एस्टिमेशन पता करने के लिए कि फ्यूचर पॉपुलेशन में किस तरह के चेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। So this theory of population change tell us that as soon as society, village, farmer and untrained person step up forwards and it is step up towards developed stage and become literate, urban and industrial stage, then population of any regions changes from high birth rate and high death rate to low birth and low death rate. And this change in population takes place in different stages is called demographic transition cycle. स्टूडेंट, ये जो थ्योरी है ये एस्टिमेशन लगाती है। इस थ्योरी की मदद से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। इसमें एक पर्सन का इम्प्रूव होना जो होता है, यानी कि एक अनट्रेन्ड पर्सन ट्रेन बन सकता है इन फ्यूचर। अभी अगर कोई इलिटरेट है, he become literate. The rural areas turns into urban. The primary stages turns into industrial stage. And if a region having high birth or high death rate, they are shifted to low birth and low death rate also. So this change in population takes place as different stages. और ये population का जो change आएगा, ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाएगा, चेंज आया भी हुआ है और आगे आने की संभावनाएं भी हैं। एंड द एंटायर चेंजेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस। So here 5 stages of demographic transition shows. Right? See the map. Here, this can be shown by the following. Illiterate become educated in future. Rural areas turns into urban areas. Farmer turns into industrial work. So this is called the demographic transition. Population का demographic transition. And by studying the theory and by studying the history of population growth in the world, we see different stages of population growth. The United Nations has also expressed its views on various stages, and this can be divided into 5 stages. The first stage shown high birth rate and high death rate. The time of second stage, it shows high birth rate, high death rate but decreasing gradually. In third stage, high birth rate noticed but medium death rate noticed as well. In the fourth stage, medium birth rate and low death rate notices. Where in the last stage, low birth rate and the low death rate recorded. So many world famous analysts have expressed their views on these stages of demographic transition theory, like Blacker, Simon, Berger. These are some of the scholars who express their ideas related to these theories. Now see the graph 3.2. This graph shows all the 5 stages. Here is first phase, second phase, third, fourth and fifth phase. And birth and death rate per 1000 per year given 0, 10, 20, 30, 40 and 50. In the first stage, the tribes of rainforest and Sudan, Congo, Ghana considered. हमारा वर्ल्ड जब फर्स्ट स्टेज में था तो उस समय
ज़्यादातर एरियाज में ट्राइबल पीपल रहते थे एंड ये ट्राइबल पीपल्स रेन फॉरेस्ट एरिया से सूडान, कॉन्गो, घाना इन एरियाज को शामिल किया जाता है। आज भी हम देखें तो ये एरियाज उसी फर्स्ट स्टेज में हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया। पर अंगोला, रोडेशिया और सोमालिया ये सेकेंड फेज में आ गए हैं। सेकेंड फेज क्या था? यहाँ फर्स्ट फेज में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, राइट, बट इन सेकेंड फेज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट बट डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। इसको चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहले बर्थ रेट 100 था और डेथ रेट जो था वो भी 100 था, दोनों बढ़ रहा था, ठीक है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट जो बढ़ रहा है वो 100 से 110 हो गया है, बट डेथ रेट जो है उसको भी बढ़ना था लेकिन ये 108 हो गया है। तो इफ वी कंपेयर अर्लियर देन इट इंक्रीजिंग, बट if we taking the rate of increasing then it decreases. So our second phase related to high birth and high death, but death is decreasing, notice decreasing, and the countries which are having that kind of situation are Angola, Rhodesia and Somalia, right? Now come to the third phase. What the third phase says? In the third phase, high birth rate and medium death rate recorded, and this kind of situations found in Cuba, Sri Lanka, India and Kenya. It means in India also we are having high birth rate and medium death rate. बर्थ रेट तो हाई है लेकिन मीडियम डेथ रेट है, बहुत ज़्यादा लोग मर नहीं रहे हैं। इन द फोर्थ फेज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इजिप्ट रिकॉर्डेड, एंड अकॉर्डिंग टू द फोर्थ फेज मीडियम बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट रिकॉर्डेड। मीडियम बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, एंड विच कंट्री कंसिडर्ड इन फोर्थ फेज? द ऑस्ट्रेलिया, द न्यूजीलैंड एंड द इजिप्ट. And the last phase, that is fifth phase, low birth rate and low death rate, right? And this is this kind of demographic transition found in Britain, Germany, Japan. Here birth rate is also low and death rate also low. So we can understand the 5 stages of the above diagram. At the first stage, both birth rate and death rate are at high level. Therefore, in these countries or regions, growth of population is very low. भाई फर्स्ट जो स्टेज है वो क्या बता रहा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई लेवल के हैं, और जब बर्थ रेट भी ऊंचा होता है, डेथ रेट भी ऊंचा होता है, तो उस कंट्री का जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो लो होता है। एंड कंट्रीज बिलोंग टू दिस स्टेज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर इस स्टेज से बिलोंग करने वाली कंट्री एग्रीकल्चरल सेक्टर से बिलोंग करती हैं। एंड अफ्रीका, सूडान, कॉन्गो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, राइट? एट द सेकेंड स्टेज both birth and death rate are high, but due to the development of health services, death rate appear to be decreasing. सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है? बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, डेथ रेट भी इंक्रीजिंग है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अर्लियर इंक्रीमेंट द डेथ रेट इज लोअर. एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लेस डेथ रेट? द बेटर हेल्थ फैसिलिटी, the development of health services. So in most of the countries of African continent, the country that was at first stage up to 2018 are now in this stage. ज़्यादातर कंट्री अफ्रीका की जो 2018 से तक फर्स्ट स्टेज में थी, अब वो ट्रांसफर हो गई हैं, ट्रांजिशन हो गया है उनमें डेमोग्राफी का, और वो सेकेंड स्टेज में आ गई हैं, राइट? नाउ एट द थर्ड स्टेज there is high birth rate and medium death rate. Hence rapid growth in population takes place. Population क्या होगा?
ग्रो करेगा। और ऐसे स्टेजेस कहाँ देखने को मिलेंगे? सभी जो नॉर्दर्न स्टेट हैं इंडिया के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन एरियाज में, राइट। एट फोर्थ स्टेज बर्थ रेट इज मीडियम एंड डेथ रेट इज लो। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना and Bangladesh, they all are having the transition of fourth stage, where the birth rate is medium and death rate is low due to the development and scientific belongings. And in the last and the fifth stage, there is low birth rate and low death rate considered. और इस सिचुएशन में क्या होता है? एक कांस्टेंट फियर बना रहता है पॉपुलेशन के डिक्रीज होने का। और ऐसा फियर कहाँ देखने को मिला है? सभी वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनमें, जापान में। ये कंट्रीज जो हैं ये फिफ्थ स्टेज तक पहुंच चुकी है, जहां पर ह्यूमन जो पावर है, ह्यूमन पावर ऑफ द नेशन बिकम्स वीक। ह्यूमन पावर कमजोर पड़ रही है। For example, the population of Russia in 1990 was 1480 lakh and that decreased to 1420. पहले रशिया की 1990 में पॉपुलेशन 1480 था, जो कि कम होकर के 1420 हो गया है। And the possibility is that it will diminish to 1330 in 2020. It means in Russia, they received the low rate of death and low rate of birth. The population is decreasing day by day, and this is also a kind of adverse situation. ये भी एक adverse situation है। बेटा सिर्फ population का बढ़ना ही नेगेटिव फैक्टर नहीं होता, पॉपुलेशन का डिक्रीज होना भी नेगेटिव फैक्टर है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो समस्या है। पॉपुलेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और जाने तमाम तरह की परेशानियां होंगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन घट रहा है और बहुत तेजी से घट रहा है तो ये भी नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। और अगर किसी देश में ह्यूमन रिसोर्स नहीं है या कम होता जा रहा है तो ये इस तरह से भी एक समस्या क्रिएट करेगी, और जो कि आजकल फेस किया भी जा रहा है। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं यूरोप की, उनमें, रशिया में और जापान में, वहाँ लगातार बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर बर्थ रेट डिक्रीज हो रही है तो नई पॉपुलेशन आ नहीं रही है, और फिर इससे क्या होगा? इससे जो एज स्ट्रक्चर है उसका थर्ड स्ट्रक्चर वाला पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कौन सा होता है थर्ड स्ट्रक्चर? द पीपल हु बिलोंग्स टू अबव 60 years, right? And mostly the peoples of above 60 years, they are liability to the country. They are not generating the income. अपने लिए इन्हें जितना करना था इन्होंने अपने वर्किंग स्टेज में कर लिया है, अब इनकी क्षमता नहीं रह जाएगी उतनी। एक समय के साथ ह्यूमन की जो कैपेसिटी है वर्किंग की वो डिक्रीज हो जाती है, और इसीलिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है दैट इज कॉल्ड द एसेट फॉर द कंट्री। और अगर इस तरह की फिफ्थ स्टेज आ जाए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। Now hope you understand entire topic well. This is the last video of this chapter. Thank you and have a nice day. Students, if you are having any kind of doubt, question, then you can message me. Thank you.